Hi everyone, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, today we are going to discuss about eMudra Limited. तो इस कंपनी का आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है. So before we do deep analysis of company's business model, its financials, valuation, let's talk about company's important IPO details. So this company's IPO is going to open on May 20th and the closing date is May 24. Price band is between 243 to 256 per share. One lot has 58 shares and this is going to list at both Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. So this was company's important IPO details. Now let's talk about company's business model. So friends, this is a product based software company which has basically two business segments. Number one, digital trust services, and number two is enterprise solutions. So under digital trust services business segment, this company basically issues certificates. So under this business segment, they issue SSL, TLS certificates, digital signature certificates. This company is largest certifying authority in India with a market share of 37.9% in the digital signature certificates market space. Now the question is, what is a certifying authority? So certifying authority is basically an institution which has got all the rights to issue digital certificates. So far, this company has issued 50 million digital signature certificates. As of September 30, 2021, the company is serving 36,233 retail customers and 563 enterprises. Mudra is the only Indian company which is recognized by renowned browsers and document processing companies like Mozilla, Microsoft, Adobe, Apple, and they allow this company to sell digital identities to individuals and organizations, and also they allow eMudra to sell SSL TSL certificates for website authentication. Not only in India, they allow this company, or basically they recognize this company globally. So this was all about company's number one business segment, digital trust services. Basically in this segment they issue certificates, different kinds of certificates. Now the question is, what is this digital certificate and what is use of it? So friends, कोई भी कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंडिविजुअल जब अपना वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी से सर्टिफिकेट खरीदना रहता है. तो कंपनी लाइक eMudra विल सेल यू दैट सर्टिफिकेट. तो जो वो सर्टिफिकेट बेसिकली इट्स लाइक योर आइडेंटिटी. तो जब कोई क्लाइंट उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो उसको कंप्लीटली ट्रस्ट रहता है कि ही इज एक्सेसिंग द राइट वेबसाइट. तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है, प्लस जो भी डेटा ट्रांसफर होगा बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड रहता है. तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रेशन का भी हेल्प होता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो बेसिकली जैसे हमको इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू किया, दैट एक्ट्स एज माई आइडेंटिटी. तो जब हम फॉरेन जाते हैं तो उनको वहाँ पे ट्रस्ट रहता है पासपोर्ट देख के कि ये बंदा इंडिया से है एंड ही इज ए वैलिड सिटीजन. सिमिलरली अगर कोई वेब सर्वर या वेबसाइट का वैलिड सर्टिफिकेट रहता है तो क्लाइंट्स को ट्रस्ट रहता है कि they are accessing the right website. Now moving to the second business segment of this company, which is enterprise solutions. So under this business segment, they provide services like identity management, public key infrastructure services, authentication and access management, e-signature workflow, certificate lifecycle management, certificate discovery, remote signing. As of September 30, 2021, eMudra's enterprise solutions are used by the top 10 banks, 6 top automotive companies, and 19 top companies out of top 500 companies in India by Economic Times FY 2020. Now let's go through objective of this IPO. मतलब जो पैसा उठाने वाले हैं इस IPO से, let's see how they are going to use that money. So they have allotted 35 crore for debt reduction, working capital requirements के लिए 40 crore, and they are going to do capex for data center build up in India and abroad. तो यहाँ पे बैंगलोर एंड चेन्नई में डेटा सेंटर बिल्ड करने वाले हैं. सिमिलरली यूरोप में एंड इंडोनेशिया में डेटा सेंटर बिल्ड करेंगे तो उसके लिए 46 करोड़ का प्रोविजन किए हैं. सो दे हैव अलॉटेड 15 करोड़ फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो ये जो सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है विच इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, तो यहाँ पे नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ पे कंपनी ने 15 करोड़ का अलॉटमेंट कर रखा है. तो इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तहत उनको नया नया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करनी पड़ेगी. तो 15 crore is a very good investment in that sector. Investment in eMudra Inc., which is basically a USA subsidiary of this company, for this business development, sales, marketing and other related cost,
फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी ने 15 करोड़ अलॉटमेंट कर रखा है। नाउ लेट्स गो थ्रू कंपनीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू को देखें, FY19 में कंपनी का रेवेन्यू था 101 करोड़ एंड FY21 में दैट इंक्रीज टू 132 करोड़ एंड इन फर्स्ट 9 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर 2021 तक, दिस कंपनी हैज मेड अ रेवेन्यू ऑफ 138 करोड़ एंड इफ यू लुक एट पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, FY19 PAT was 17 crore and in FY21 PAT became 25 crore and in last 9 months of this financial year they made a PAT of 30 crore. तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ को देखें बिटवीन FY19 टू FY21, रेवेन्यू CAGR was 13.8%, PAT CAGR 20.6%. The company has a debt of around 37 crore and they have a cash of around 11.6 crore. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑफर में डेट रिडक्शन के लिए 35 करोड़ अलॉटमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी आफ्टर दिस IPO. सो फ्रेंड्स, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, मुझे लगता है कि as I stated in the beginning that this is a product based सॉफ्टवेयर कंपनी, और जिस सेक्टर में एक कंपनी है वो सेक्टर आगे जाके काफ़ी ग्रो करने वाली है, बिकॉज अभी द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटाइज्ड. Every business they have to go online and they have to build their own website. Also nowadays if you see, lot of work is getting done through paperless documentation. मतलब चाहे बैंक अकाउंट ओपन करना हो या किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे हमको फिजिकल फॉर्म पेपर लाके सिग्नेचर करके फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ डिजिटल हो जा रहा है. तो ये जो ई सिग्नेचर, KYC और वेबसाइट ऑथेंटिकेशन, ये सारा सेक्टर का ग्रोथ आगे जाके बहुत होने वाला है. एंड कंपनी लाइक eMudhra विच इज़ rightly catering to this sector to issue digital certificates, e-signatures, SSL certificates for website authentication. तो मुझे लगता है इस कंपनी का बिजनेस आगे जाके काफ़ी ग्रो करने वाला है. तो यहाँ पे जो कंपिटिटर्स है इस कंपनी के इंडिया में एज ऑफ नाउ देयर इज नो लिस्टेड और देयर इज नो रिनोन्ड कंपिटिटर. जो भी इसका कंपिटिटर्स लाइक DocuSign, Adobe, GoDaddy.com या सिमेंटेक कॉर्पोरेशन, डिजिशर्ट, ये सारे US बेस्ड या यूरोप बेस्ड कंपनीज है. दिस कंपनी इज वेरी यूनिक फ्रॉम इंडिया विच इज सेलिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सारे IT सर्विसेज या सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बट देर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज. नाउ लेट्स गो थ्रू कंपनीज वैल्यूएशन. तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी इन लास्ट 9 months, मतलब इन लास्ट 3 quarters ऑफ FY22, कंपनी ने रेवेन्यू बनाया 138 करोड़, पैट 30 करोड़ कंपनी ने रजिस्टर किया है, और ये EPS बन के आ रहा है 3 रुपीज़ पर शेयर, मतलब इन लास्ट 3 quarters फ्रॉम अप्रैल मंथ टू दिसंबर 2021. तो अगर यहाँ पे इसको एनुअलाइज्ड रिटर्न करें तो लास्ट 3 quarter में EPS रहा है 3 रुपीज़ पर शेयर. तो यहाँ पे होता है कि पर क्वार्टर 1 रुपीज़ पर शेयर आता है. तो इसको अगर एनुअलाइज्ड करें तो FY22 का EPS आता है 4 रुपीज़ पर शेयर. IPO का प्राइस बैंड हायर एंड में दिया गया है 256 रुपीज़. तो इस हिसाब से ट्रेलिंग 12 months PE निकालेंगे तो 256 डिवाइडेड 4 जो कि आता है 64 PE. तो मतलब ट्रेलिंग 12 months PE आता है 64. तो मुझे यहाँ पे कंपनी का बिजनेस बहुत पसंद है. हाई ग्रोथ सेक्टर है, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट यहाँ पे जो PE है 64 वो थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है, क्योंकि कंपनी का अगर ग्रोथ रेट देखें जो लास्ट 3 years FY19 टू FY21 पैट ग्रोथ रेट है 20%. तो अगर ग्रोथ रेट 20% है और PE उसका डबल है, मतलब 40 अप टू 40 है, देन आई कैन से दैट इट्स ए लाइक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. बट यहाँ पे PE 64 आ गया है, तो विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 3 times ऑफ द ग्रोथ रेट. तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन ये बहुत ज़्यादा लग रहा है. सो being a value investor or a long term investor, I am not going to apply to this IPO, क्योंकि यहाँ पे जो PE है काफ़ी एग्रेसिवली हाई रखा गया है. इसका जो पीयर्स है, जो फॉरेन कंपनीज है, उनका अगर PE देखें तो कंपनीज जो जिनका सब्सिडियरी है जैसे डिजिशर्ट या सीमेंटेक कॉर्पोरेशन, उस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है नॉर्टन लाइफ लॉक, उसका PE अभी चल रहा है 15 पे. एडोबी जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका PE चल रहा है 40. बिकॉज दिस कंपनी फ्रॉम इंडिया और यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है वो स्कैरसिटी के चलते यहाँ पे हाई प्रीमियम कंपनी डिमांड कर रही है. तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, सही सेक्टर में है, हाई ग्रोइंग सेक्टर है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन हाई होने के चलते मैं यहाँ पे IPO में अप्लाई करना अवॉइड करूँगा. बट आई विल मॉनिटर दिस स्टॉक जब भी मेरा वैल्यूएशन पे आएगा. मतलब देखिए यहाँ पे PE 2 कारण से
कम हो सकता है, इधर अर्निंग बढ़ जाए या शेयर प्राइस गिर जाए। तो अगर कुछ भी होता है, इन दोनों में से कुछ भी होता है, तो जब पी कंफर्टेबल रेंज में आता है, देन आई विल look to invest in this company. So friends, this was all my analysis about eMudra Limited. So definitely you guys can also read the DRHP and study more about this company. इस वीडियो में जो भी मैंने डेटा दिया इस कंपनी के बारे में, those are all taken from the DRHP filed with SEBI. So here people who are looking for listing gain, definitely they can go ahead and apply, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत यूनिक कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है फ्रॉम इंडिया, तो डेफिनेटली ओपनिंग बहुत अच्छा होने का उम्मीद रखता हूँ मैं। तो डेफिनेटली जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए सोचते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट पीपल लाइक मी हु आर लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड लाइक ग्रोथ एट रीजनेबल और फेयर प्राइस इन्वेस्टर्स, तो दे कैन वेट, दे कैन ट्रैक दिस कंपनीज परफॉर्मेंस, और जब भी उनको मौका मिलेगा तो वहाँ पे लगाना चाहिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस IPO एनालिसिस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एक्साइटिंग बिजनेस एनालिसिस। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।